I'm Rehana Janwari. Today I'll be discussing about the chapter Fiber to Fabric. And in this chapter I'll discuss about fibers, natural fiber, that is wool, processing of wool, yarn to fabric. This will be my part 1 of this chapter. Now about introduction. We wear clothes to protect our bodies from extreme cold, heat, rain, and yes, of course, for modesty and beauty. The material that we use for clothing is called fabric. These are some common examples of the fabrics that we use. This that is silk, cotton, silk, jute, wool, nylon, polyester. Now, what fabric is? Now what fabric is made up of? Fabric is made up of yarn, and yarn in turn is made up of fibers. If we get yarn from any fabric or any cloth like this, we take out yarn from any cloth and then untwist it, we get small strands, and these small strands are known as fibers. Now, what fiber is? A fiber is a hair like strand or thread like structures from which all fabrics are made. There are two categories or two types of fibers. One is natural, another is synthetic. We have plant and animal, that comes under natural types of fibers, and under animal category we have wool and silk, and then plant category we have cotton and jute. The examples of synthetic fibers include nylon, acrylic, terylene, etc. Now we would focus on animal fibers, and today it will be about wool. Wool is obtained from sheep, yak, camel, llama, alpaca, and other furry animals. It is obtained from specialized skin cells called follicles of furry animals. Furry animals basically have two types of hair: coarse beard hair and fine soft underhair. It is the fine soft underhair that actually provides the fiber for making wool. These are the examples of wool yielders, that is sheep, yak. And now coming to the processing of this wool. It involves following steps: shearing, scouring, classing, carding, and combing. Now, what shearing is? Shearing refers to removing fleece from the body of sheep. बेसिकली ये शेयरिंग कब किया जाता है? इट इज़ डन इन अर्ली समर मंथ्स या इमीडिएटली बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, क्योंकि शीप नेचुरली मोल्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका शेयरिंग बहुत नेसेसरी है, बिकॉज ये इनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम ओवर हीटिंग इन हॉट सन, क्योंकि इनको फर से ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी, तो इसीलिए शेयरिंग किया जाता है. एंड शेयरिंग जो है, इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट यूजिंग क्लिपर्स. या तो मैनुअली किया जाता है और इट इज़ डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक clippers. These electric clippers work faster and are similar to the way hairdressers work. After this cutting of this fleece or after this shearing, then comes next step, that is known as scouring. Scouring को washing भी कहते हैं. Wool जो obtain होता है from sheep, it is greasy, क्योंकि इसमें high level of lanolin होता है. Now lanolin होता क्या है? Lanolin basically wool wax है या wool fat है, wool grease है, जो secrete करते हैं wool bearing animals. इनके ग्लैंड जो होते हैं वो स्क्रीट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, वुल में खाली यही चीज़ें नहीं होती है, वुल में ट्विग्स भी हो सकता है, ग्रास, स्ट्रॉ, डस्ट, डर्ट, ये सब चीज़ें भी हो सकती है. एंड इन चीज़ों से टू गेट रिड ऑफ दिस, तो प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस इज़ डन इन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, एंड इसी प्रोसेस को हम, इसी स्टेप को हम स्काउरिंग भी कहते हैं. After washing, then comes third step, that is known as wool classing. Wool classing basically ये क्या होता है? आफ्टर वॉशिंग वुल जो है, इट इज़ सेपरेटेड इनटू 4 कैटेगरीज. एक हो गया फ्लीस, देन कम्स ब्रोकन पीसेस, देन कम बेलीज एंड लॉक्स. आउट ऑफ दीज जो फ्लीस पार्ट होता है, यही मेन कलेक्शन बनाता है. तो इसको ही फर्दर प्रोसेस करके फर
ऑब्टेन किया जाता है एंड क्वालिटी जो वुल की है दिस इज़ डिटरमाइंड बाय एक फाइबर का डायमीटर क्या होगा, इसका कलर, इसका स्ट्रेंथ एंड यील्ड क्या होगा। और सबसे फाइनेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल वुल जो है इट कम्स फ्रॉम मरीनो हॉगेट्स। हॉगेट्स बेसिकली यंग शीप होते हैं जिनको मरीनो भी कहते हैं। एंड जो शीप जिसका मीट हम लोग खाते हैं दैट इज़ क्वाइट कोर्स, उसका वुल जो है इट इज़ क्वाइट कोर्स। देन कम्स कार्डिंग एंड कोमिंग। जो आफ्टर वुल क्लासिंग फाइबर को ब्रश किया जाता है टू गेट रिड ऑफ टेंगल्स। इसमें बहुत सारे टेंगल्स होते हैं, इन ऑर्डर टू गेट इट डिसएंटेंगल्ड और रिड ऑफ दीज टेंगल्स कार्डिंग इज़ डन। कार्डिंग यूजुअली हार्ड कार्ड से किया जाता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है डॉग ब्रशेस से, या इसको मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है जिनको ड्रम कार्डर भी कहते हैं। एंड देन कूमिंग इसको किया जाता है ताकि शॉर्ट फाइबर्स ये देन अलाइन हो जाए एंड देन कूमिंग जो है किया जाता है शॉर्ट फाइबर्स इससे रिमूव हो जाए। आफ्टर कूमिंग फाइबर्स को स्पन किया जाता है टू मेक लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यॉन। अब यॉन को फिर फाइनली फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। एंड बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट आई सपोर्ट माई वीडियो विद सम पिक्स। दैट इज़ ये है टूल दैट इज़ यूज फॉर कटिंग वुल। ये इलेक्ट्रिक क्लिपर है जिससे टाइम भी सेव होता है, इससे वुल शेयर किया जाता है। एंड देन ये स्टेप है शेयरिंग का स्टेप जिसमें वुल को क्लीन किया जाता है, इसको वॉश करते हैं एंड वॉशिंग के बाद इसको क्लासिंग किया जाता है दिस वे और दिस वे। क्लासिंग के बाद मैंने आपको बताया वो कार्डिंग किया जाता है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कार्डिंग। एंड देन कार्डिंग के बाद कलर किया जाता है, दिस डाइंग इज डन टू गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ yarn and this yarn finally yarn of different colors is obtained. Now coming to yarn to fabric. yarn जो obtain होता है आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ वुल ये कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में बाय टू मेथड्स। एक हो गया वीविंग, देन सेकंड कम्स निटिंग। वीविंग में क्या होता है, इट इज़ डन बाय इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ yarns एट राइट एंगल्स। जो yarn लेंथ वाइज रन होता है दैट इज़ नोन एज warp एंड yarn जो रन अक्रॉस होता है दैट इज़ नोन एज weft। इनको ज्वाइन करके फाइनली फैब्रिक हासिल होता है। देन कम्स निटिंग। निटिंग या तो निटिंग नीडल से किया जाता है या तो ये मैनुअली किया जाता है और इट इज़ डन बाय मशीन्स। फाइनली वीविंग एंड निटिंग के बाद फैब्रिक रेडी हो जाता है। और आपको ये चीज़ें समझने के लिए पिक्स दिखाऊंगी मैं। दिस इज़ warp एंड दिस इज़ weft, these join together to form fabric like this। तो ये हो गया निटिंग वाला जहाँ पे आपका फैब्रिक फाइनली ऑब्टेन होता है। दिस इज़ द फाइनल fabric that we get after weaving or after knitting or this way. Thank you.